Abhigyan Shakuntalam by Kalidas. So that is not a fictional text. Okay. So you must be wondering, ki yaar ye, why are you making this comparison? Start with Mrich Katika, man. We are already late, right? Oh hell yeah. So see, wow. Listen, see, I haven't had anything. Okay, so thoda sa. Okay, so Jahir Mashra, मैंने कुछ नहीं खाया. Okay, what I'm saying is कि it's a fictional seconds. Okay, done. So, uh, it's a Sanskrit play, and it was not only in Sanskrit. We will see how there are layers that we need to unravel. Of course, I will do. Before beginning this play, let me give you some brief idea about this. Okay, there are a lot of things that we are going to do, but I will first give a brief idea. It's basically Vasant Sena, who is a courtesan. What is a courtesan? So, in simple words, in today layman words, English word, you can say prostitute. Okay, though it's not a very good term, but just to make it clear, what does courtesan mean? The word courtesan. Okay, but बोलते हैं courtesan और जो भी कई बार कान एकदम ठूसा हुआ होता है ना तो वो खुद भी समझ नहीं आता आप क्या बोल रहे हो. Just kidding. So what I'm saying is कि courtesan. Have you seen or watched that movie Umrao Jan? If not, एटलीस्ट पता होगा. ठीक है, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं. सो दैट तवायफ, द वर्ड तवायफ, लखनऊ, ये सारा कनेक्शन हो जाएगा. जस्ट हैव पेशेंस कि मैं कहां कहां ले जा रहा हूं, सारा कनेक्ट कर दूंगा. आई विल कनेक्ट ऑल द डॉट्स, डोंट वरी. ओके, जस्ट कीप ऑन लिसनिंग, डोंट हियर, लिसन. दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स. यू, आई होप यू नो दैट. सो कीप ऑन लिसनिंग टू मी एंड सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे. कैसे तवायफ, ये क्या बोल रहे हो, सब कनेक्ट हो जाएगा. रिलैक्स, जस्ट चिल, जस्ट चिल चिल. तो Tawayaf. How Tawayaf is different from contemporary. Again, I would have to use this term a lot of times. I'm sorry for that, but without that, I don't think I could make my statement clear. Anyway, so yes, prostitute. Yes. So today's contemporary prostitute. What today's contemporary prostitute? So how can we make this comparison? How they were different? कैसे वो अलग थे आजकल के जो prostitutes हैं उनसे. So तवायफ का काम was not just to give physical pleasures, which was one of the duties, but it was not the only one, and also it was not the most important one. It was one of the most important ones, but it was not the most important one. So you would say, what? Yeah, understand this. They also should have the knowledge of gaan, gaan bole to music, singing, dancing, embroidery, basic things, elite etiquettes, and these things and characteristics, terms, जो भी characteristics features हैं, they were associated with Tawayaf. And who were their customers? Normally, by courtesan, if I use the term, normally they were high class people, noble people. Again, I would use the reference of Umrao Jan. So in that, Nawab is the customer. Of course, he falls in love and all that. So if you have read that play, or if you have watched that movie, you would understand it. If not, it's all right. I'm making you understand. So what I'm saying is कि तवायफ एक कोठे पे बैठने वाली एक महिला नहीं होती थी, एक औरत नहीं होती थी जस्ट, बट उसके अंदर बहुत सारे गुण होते थे, बहुत सारी कलाएं होती थी जिससे वो सुशोभित होती थी. And those characteristics made her unique, gave her the elegance that the noble class customers used to look for in a prostitute, and not even a prostitute, courtesan. Okay, the proper term for that. So Angelica Bianca, The Rover by Afra Ben. If you remember, that's English play, of course, restoration comedy. In case if you remember that, Charles II and all that, right? So if not, it's all right, no issue. So coming back to Mrich Katika, Vasant Sena is that. She is not just a person who is in love with money, and she is not actually. And also, if a prostitute loves a person for his money, then it was considered, of course, a very prostitute-like, okay, quote unquote. But here, Vasant Sena, who is in love with Charu Dutt, the hero, you can say, the protagonist of this play, and there are various characters
that are directly, indirectly linked, associated with Charudat. Okay, so some people consider this play as very complex, very complicated, you can say, but actually it's not. The only reason for this play being complicated, complex, is that there are various characters that come and go. People come and go, talking of Michelangelo, you know, if you remember these lines. Anyway, so हटाओ चम्मच. So what I'm saying is कि तिनका धाना ताके तीकर धाना, ठीक है, तो ततई का धाना. So this Charudat was once a rich man. He had money, but he was so benevolent. He was so, you can say, very charitable, altruistic, philanthropic. These are the adjectives that I can use for him, of course. So he was that. And because of that, he himself became a poor man. This reminds me of a joke, which is not a joke in case of Charudat. I'm not making fun of him, of course, because he's a very good person. I respect him. But joke याद आ गया, मैं वो बता देता हूँ. जोक ऐसा है कुछ कि अरे भैया यहाँ आप कटोरा लेके क्यों बैठे? तो वो बोलता है कि हाँ, एक आदमी 100 रुपए देता है. बोलता है अच्छा अगला नंबर आप ही का, यहाँ पे जगह बना रहा हूँ मैं भी आप ही की तरह था. सबको 100 रुपए देता था. आज मुझे 100 दिन में 100 रुपए मिल जाए बहुत है. खैर, कहने का मतलब है, well, again, that's very bad for me as well. I should control myself. Okay, Ajay, coming back to the point. So Charudat was a very good person. Okay, चलो मृच कटिका पे आते हैं now. Now you know about these two main characters. Mrich Katika is a unique Sanskrit play as it deals with a totally fictional creation. अब आप सोचेंगे how come it's a unique play? First of all, you should understand the situation, the setting, I mean, in which it is located, the era in which it is located. Again, it cannot be called a play of a certain age, but which does not belong to an age, but to all the ages. Wow. Okay, ये पता ही होगा आप कहाँ से ले रहा हूँ मैं लाइन, या शेक्सपियर के बारे में था. So anyway, so this play Mrichakatika, rest of the plays were generally taken from Mahabharata, Ramayana, epics, scriptures, Vedas, Upanishads, and all those things, right? Anyway, Mrichakatika seems to flout the norms of the Natya Shastra, as it does not deal with the lives of exalted beings. So now you must be wondering, what exalted beings? Demigods, semigods. Okay, no semigods. Demigods, gods, heavenly figures, heaven, hell. You know, you got the point, right? Superhuman beings, those kind of people. So, but there are no such people. These are common folks. These are common people that Mrichakatika talks about. This play talks about, deals with, and it also shows and reflects the society, the kind of society that flourished at that time. Yes, flourished. Yes, right now. Because commerce was going on, trade was going on. People are like general people, you know, talking and dealing with trade, about trade, business, and everything. So yeah, in that sense. Natya Shastra, Norasas, I hope you remember. So this has this Ringar rush, but in a different way. Not like Abhigyan Shakuntalam, Dushyant and Shakuntala, not like that. This Shringar Ras here is a different one. Not exactly that. It is flouting the norms, just like Shakespeare flouted that Thana by Aristotle, given by 3 unities. So he flouted it again, but he also tried to inculcate it to some extent in 1 or 2 plays, or in some plays. Okay, but हम Shakespeare नहीं पढ़ रहे हैं, so okay. Moreover, it is interspersed with the vernacular, also known as Prakrit. Now this makes it very unique. Okay, this Charudat is a Brahmin figure. Okay, so this also shows, and there is constant stress or talk about, mention about Brahmin and other caste, that I'm Champiwala, shampooer. So basically in Champiwala in today's terms, of course, shampooer also meant in a way masseur, okay, massage karne wala.
So not only like Champi is जो तेरा चकराए तो काहे घबराए आजा प्यारे पास हमारे whatever that was गाना ठीक है चंपी करवा ले ऐसा कुछ okay so basically these caste norms and caste practices were very much there, but was there anyone who was challenging the caste norms? Yes, emergence of Buddhism was very much there by that time, and we will see that a gambler who tries to become a monk, and he becomes a monk, no doubt, he becomes a monk, but he was indebted, highly indebted and in debt because he was a gambler and people wanted to beat him. So then he decided, once he was saved by Vasant Sena, that okay, now I will leave gambling and I will become a monk, Buddhist monk, not just any monk. Remember this thing. He could have also become a Brahmin priest or a Brahmin priest or Brahmin bhikshu, you can say. Buddhism में ही भिक्षु ज़्यादा use होता है, I know that. But Brahmin में भी वही होता था practice, Bhikshamdehi and all that. So, but he decided to become a Buddhist monk. Okay, so that also shows that Buddhism was flourishing at that time, and people were joining it. And since Shempur was not a Brahmin, so you can say, considering the caste practices that were prevalent during that time, he chose to become a Buddhist monk instead of a Brahmin priest, which is, of course, it answers the question, why not Brahmin priest? Because of that reason, simple, right? So society won't accept it, you know the terms. Thandi ho rahi hai. Okay, so moreover, it is so Sanskrit language. See, the first line is, as I told you, Mrich Katika is a unique Sanskrit play. And now I'm saying in the third line, interspersed with the vernacular also known as Prakrit. You would be saying, sir, are you confused? You are saying Sanskrit play, then Prakrit play. What are you saying and confused? सुबह सुबह क्या है, मतलब मजाक कर रहे हो? देखो मजाक तो मैं करता हूँ, लेकिन ये मजाक नहीं है, ये सच्चाई है. ओके, तो जिंदगी ही एक जुआ और हो रहा है धुआं धुआं. तो संस्कृत प्ले. This is Sanskrit play, but it also has Prakrit language. So there is intersperse or amalgamation of the two main languages. Now, since you know about it, but still, since these two languages are mentioned, so I need to give a brief intro. Sanskrit, as you all know by now, I hope, that was the language used by the Brahmin class or the upper caste people. Okay, Brahmin people, Brahmins. And Prakrit was mainly used by people who did not belong to upper caste. Okay, or you can say it was used by not learned men or illiterate, yeah, of course, common masses basically. Sanskrit by literate people, not only Brahmins, but yes, again, Brahmins were the majority of them were the literate ones, and Brahmins were actually had this access of education. Mainly, you can say, I won't say 100% because other people also learned. Of course, Kshatriyas, they had to because they were kings and all. Vaishyas because they had to trade. But as far as Shudras and Ati Shudras were concerned in the Varna system, and of course outside the Varna, because that Ati Shudra, the scheduled caste, which we call today, constitutional term. So I hope you know about this caste dynamic. If you don't know, I would suggest that you please read it, because then it would be a different lecture altogether. But yes, it needs mentioning, so I'm mentioning it. But also we need to take care that we have to do the play, not that segment, sociological study to some extent, but not fully. Anyway, coming to the point. So Prakrit was the language which was used by common masses or illiterate people. As in starting in the beginning, when Anglo-Norman period, after that, William the Conqueror conquered in 1066 AD. Then French became the courtly language. Latin was the papal language or church ka language. And of course, English, very strangely, was the language of the common people. So similarly here, आगे बढ़ते हैं. बहुत एक ही चीज पे हो गया. And this is the book cover. Okay, this is the book cover which you have to buy. यानी कि यही वो किताब है जो आपको खरीदनी है. वो किताब कहाँ गई? अरे यार,
मैं पढ़ रहा था रात को। हाँ, दिख नहीं रही, मैंने इधर उधर रख दिया होगा। हाँ ये रही मेरी। ओके सो yeah, so this is the book. Okay, I hope you are able to see it. If not, it's all right. I'm just showing the same book. Okay, the same cover. I'm just giving a proof कि यही वो किताब है. Okay, same book है और कुछ अलग नहीं है. अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं. Anyway, so this is the book that you need to buy. Okay, M.R. Kale के द्वारा translated. आंसर इस कि इसमें जो होते हैं ड्यू के प्रोफेसर्स के द्वारा ही, खुद मेरे कुछ बहुत ही रिनोन्ड टीचर्स है, प्रोफेसर्स है जिनको मैं जानता हूँ, उन्होंने भी अपने क्रिटिकल अप्रिशिएशंस दिए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस बुक ओनली, आई एम टॉकिंग जनरल वर्ल्ड व्यू एडिशन. सो यू विल फाइंड the critical analysis essays, you know, that by due professors and different people as well, but you know, basically this I would suggest, highly recommend worldview edition if you can find it. If not, then of course different one. So ये worldview edition है. I hope clear हो गया, क्योंकि यही क्वेश्चन 50 बार आता है मेरे पास. एक ही सवाल का आंसर मैं सारे ग्रुप्स में कर देता हूँ, या फिर जितने भी ग्रुप्स में हूँ मैं कर देता हूँ कि भैया ये किताब है, बट वही फिर से कि सर कौन सी किताब. सामने देख लो, ठीक है, देख लो, यही किताब है. आगे बढ़ते हैं. द मृच्छकटिका हैज बीन ट्रांसलेटेड, एडेप्टेड. देखो मैंने ये बोल्ड में भी कर दिया है क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन आने वाला है. तो मृच्छकटिका हैज बीन ट्रांसलेटेड, एडेप्टेड एंड परफॉर्म्ड ग्लोबली and is a significant aspect of our ancient literary tradition. Not lost in translation, lost in the sense it was not in the public view, you can say, but it was discovered. Yes, right term. It was discovered, I think, in 19th century, and since then it has been translated widely. It got translated first, then कौन से exactly year मुझे याद नहीं आ रहा है, but yeah, in you can say 19th century, I think, if I'm not wrong, and then translated in many languages. So ये basically I would say it shows the another aspect of ancient literary tradition. Till now you have read or got the knowledge about Vigyan Shakuntalam like text, epics, you know, Mahabharata, Ramayana. Mahabharata, of course, I did with you. बहुत जल्दी ठंडी हो रही है, बट जल्दी नहीं हो रही है, ये आधे घंटे हो चुके हैं. एनीवे, सो मेरी चाय के ओके. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि हाँ भैया, क्या कह रहे थे हम लोग? तो हुआ तो बोलता हुआ बोलता है तो नहीं बोलता है. बड़ा ड्रामा था वो. खैर, मृच्छकटिका adapted and performed. तो हो गया, आगे बढ़ते हैं. प्रेस्क्राइब्ड बुक, आई टोल्ड यू, आई शोन यू द कवर. मृच्छकटिका ऑफ सुद्रिका, दिल्ली मोतीलाल बनारसी दास. एक्चुअली आई थिंक ये कमला नगर में भी आई थिंक है इनका बुक शॉप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. मैं टाइम हो गया गए हुए बिकॉज ऑफ ऑल दिस पैंडेमिक एंड ऑल, बट है शायद, चेक कर लेना एक बार. नहीं, मैं तो अमेजोन तो है ही, मैंने अमेजोन से ही खरीदा है. ट्रांसलेटेड बाय एम आर काले. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं भैया. Sudrika's famous play, Mrichkatika, is a drama text that belongs to the beginning years of the first millennium. As like most of the other classical texts, Indian texts, जो date है, there is a problem. We are not so sure कि which which era or exactly which year, you know, there is no surety. But it is generally assumed that in 500 AD to पता नहीं कौन सा AD तक फर्स्ट मिलेनियम है. मिलेनियम, यू नो ना, 1000 years. मैन ऑफ द मिलेनियम किसे बोला गया था? मिस्टर बिग बी को, अमिताभ बच्चन जी को. तो मतलब वो मैन ऑफ द मिलेनियम, आई मीन ठीक है, आप बोल सकते हो, बट मिलेनियम में बहुत सारे लोग थे. एनीवे, ओके, जस्ट किडिंग, आई रिस्पेक्ट हिम, बट आई एम जस्ट सेइंग. सो मृच्छकटिका, ओके, बिगिनिंग ईयर्स ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम. ओके, डेट्स किसी को कोई श्योरिटी नहीं है, डोंट वरी अबाउट द डेट्स इन द आंसर. जब आपको लिखना हो यही लिख देना, बिगिनिंग ईयर्स ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम. ठीक है,
no one will cut your marks. I hope so. The period to which the writer Sudraka belongs is ancient India. No need to stress it. Of course, it's very clear. It is heard. Why did I write Sudraka? अभी बताता हूँ मैं. It is heard that the play was not known till its text emerged in remote Kerala in the early years of the 20th century. Okay, early years, sorry, not 19th. 20th century में केरला में ये इमर्ज हुआ, डिस्कवर हुआ, ठीक है. तो ये आपका वहां से आया फिर, ठीक है, मृच्छकटिया. At the same time though, there are bits of information about the play. अच्छा, I'm not sorry, I should not be, मैंने सही बोला था. Having been translated into a number of European languages in the latter half of the 19th century itself, ठीक है. So अब आगे बढ़ते हैं. Sudraka, the playwright of Mrichakatika, lived at some point of time between the 1st and 3rd century AD. Okay, that I told you 100 and 300 AD के बीच में. So of course he was not living there. He did not live for 200 or 300 years, of course not. But this will give you some idea that during that time this was written. It's considered like 500 AD. I'm not wrong. I said it correctly. 200 AD to 500 AD. कुछ भी मतलब ऐसा different versions हैं, books हैं, articles हैं. Sanskrit is driven by brevity, suggestion and focus. अब आते हैं focus language पे. संस्कृत जो है, it has that element of brevity. कम शब्दों में बहुत सारी बातें कहना. एक शब्द में, सेंटेंस तो खैर बड़ा ही हो गया, शब्द भी बड़े होते थे, वैसे बड़े होते हैं मतलब संस्कृत में. अगर देखा ही होगा, मेरे को एक श्लोक याद है, उद्मेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे न ही सुक्तस्य सिंहस्य प्रवेशति मुखे मृगा. इट हैज नथिंग टू डू विद दिस टेक्स्ट, बट मुझे याद है तो बोल दिया मैंने. तो संस्कृत जो है, इट इज ड्रिवन बाय, मेरे टीचर ने कहा था स्कूल में कि एक श्लोक तो याद कर लेना चाहिए. आई वाज लाइक ओके फाइन, बाकी भी याद थे बट अभी उतने याद है नहीं. खैर, तो संस्कृत इज ड्रिवन बाय ब्रेविटी. ओके, सजेशन एंड फोकस. प्राकृत सब्जेक्ट था मेरा संस्कृत, जैसे हिंदी होता है ना, वो तो स्कूल जो देता था वही ले लिया था. एनीवे, प्राकृत ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम द एक्चुअल यूजेज and the putting together of the two languages, Sanskrit and Prakrit, in the play works wonder for the depth of communication. Prakrit, जिसके बारे में बता चुका हूं मैं, इसका actual usage जो होता है, जो लोग use करते थे, because Sanskrit was formal language, you know, very formal, etiquette language वाला, jargon, you can say, technical term kind of. आज के दुनिया में compare करो तो, you know, office वाली office में तो खैर आजकल क्या ही बोलूं, मैं corporate की बात कर रहा हूँ. तो डॉक्टर वाले, जैसे डॉक्टर लोग कुछ लिख देते हैं, बोलते भी क्या है, कुछ समझ नहीं आता है, ठीक है. तो मेरे फ्रेंड है एक डॉक्टर, आई ईट एन एप्पल अ डे टू कीप माय डॉक्टर फ्रेंड अवे. जस्ट किडिंग, ही इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग. वेल, प्राकृत जो है एक्चुअल यूजेस है, एंड द पुटिंग टुगेदर ऑफ टू लैंग्वेजेस, संस्कृत और प्राकृत दोनों का बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं? संगम हो गया बेटा, संगम हो गया, ठीक है. संस्कृत और प्राकृत का संगम हो गया, भले आपके जीएफबीएफ का हो ना हो, डजंट मैटर. इन द प्ले वर्क्स वंडर फॉर द डेप्थ ऑफ कम्युनिकेशन. इससे गहराई का पता लगता है, आप गहराई में उतरते हो. ओके, देयर एग्जिस्ट न्यूमरस रेफरेंसेस टू शूद्रका इन राइटिंग्स ऑफ द एंशिएंट पीरियड. जो शूद्रका है, जो नाम है शूद्रक या शूद्रका, ठीक है, अभी तक मैंने शूद्रका ही वर्ड pronunciation सुना है. If I'm wrong, of course you can correct me, but I think this is the word. शूद्रक भी बोल सकते हो, but शूद्रका सुना है मैं, तो शूद्रका, I'm going by that. So शूद्रका जो है, क्या, शूद्रका के references बहुत सारे हैं. Okay, so he was not a fictional character. That's the one thing that we can be sure about, because also it's very important since during that time there was not this publication thing. Okay, publi हो गई यार नाम तेरा पढ़ के. तो शूद्रका जो है वो बहुत बार मेंशन है. सीरियस, दिस मैन इज रिमेंबर्ड एज अ ग्रेट रूलर, अ फाइन स्टेट्समैन, अ स्कॉलर एंड थिंकर ऑफ रिप्यूट, एंड वन हु न्यू मेनी लैंग्वेजेस. सो शूद्रका जो है, ही इज ऑफन thought of as or considered as that he was a king. Okay, he was a king, but again आपको ये मान के चलना है he was a king, this writer was a king. तो आप बोलोगे हाँ ठीक है सर, किंग था तो ठीक है, तो क्या
नो बेटा सुनो मेरी बात, देखो ठीक है, ये जो टिकटॉक टिकटॉक करती है ये सारी गलती है, ठीक है। सो ओके ओके, सो टिकटॉक नहीं देखना है आपको, आपको पढ़ाई पे ध्यान देना, कि वैसे भी कहाँ से देखोगे, मैंने यूट्यूब पे देख सकते हो, मत देखो। आगे बढ़ते हैं भैया, देखो किंग जो है, दे वर नॉट एकेडमिशियंस, they were not scholars in the sense ki they were involved in the, you know, in ruling their court in their country, I mean yeah, states and all that, you know, places जो भी rule, क्योंकि वो मैं इसलिए एक वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि किंग छोटे मोटे भी होते थे, राइट। सो वो भी अपने आप को किंग बोल देते थे। सो टेरिटरी यू कैन से बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स। सो they were busy with that thing, so you won't find many kings, or rather I should say you would find ikke dukke kings you can count on your fingertips, not the China border wala jo conflict chal raha hai fingertips wala, this is different, your fingertips, you can count that, okay, so you can count it, not many kings were writing it, but he, Sudraka, is assumed that he was a king, okay, fine statesman, he was a great ruler, like that Marcus Aurelius, yeah, Stoicism, well, a Stoic king, you know that, right? A great Roman king, but yet he was a very fine gentleman, I would say. I have read, मैंने बहुत पहले पढ़ा था, I think मेरा पूरा Stoicism की जो किताबें थी, 3-4 किताबें हैं मेरे ख्याल से, मेन बात कर रहा हूँ मैं, और भी होंगी, बट मेन वो मैंने पढ़ी थी पूरी। खैर, सो लेटर्स वगैरह है उसमें, खैर फाइन स्टेटमेंट से, स्कॉलर थे and thinker of repute, and he knew also, he was a polyglot, he knew many languages. तो हम शूद्रक के ऊपर इतना क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, रीजन है उसका, अभी मैं कनेक्ट करूंगा डॉट जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था लेक्चर के, और अभी यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ और भी कुछ है, ठीक है, डोंट वरी। इट इज पॉसिबल दैट द राइटर ऑफ द प्ले मृच्छकटिका thought of hiding behind an assumed name शूद्रका, ओके। शूद्रका जब आपने पहली बार सुना होगा, बी वेरी ओके, इसमें शर्माने की बात नहीं है या फिर सोचने की बात नहीं है, पहली बार सुना होगा आपने, तो आपको लगा होगा यार शूद्र का, इज इट लाइक शूद्र कास्ट का, शूद्र का, यू नो, ऐसा सोचा होगा। सो क्योंकि नाम ऐसा लग रहा है, बट इज इट सो? द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, एज फार एज जितना मुझे थोड़ा बहुत पता है, जो आर्टिकल्स पढ़े हैं, दे जनरली से कि नहीं भैया ऐसा नहीं था, ही डिड नॉट बिलोंग टू लोअर कास्ट, ही वाज अ किंग वगैरह जो भी मैंने बोला, बट वन कैन नॉट डिनाई इट एट द सेम टाइम। इट्स लाइक दैट शेक्सपियर थिंग, ओके, कि शेक्सपियर क्या गे था, क्या वुमेन थी, या अनपढ़ था, गवार था, या जो एक कौन से कोई नोबल मैन था, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो उसका नाम, क्योंकि नोबल मैन वगैरह लिखनी, इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, तो डायरेक्टली अपना नाम नहीं दे सकते थे एंड ऑल दैट, तो उसने शेक्सपियर के नाम पे पब्लिश करवाया एंड ऑल दैट, या प्लेस करवाए। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, मतलब पूरे किताबें लिखी गई हैं कि शेक्सपियर कौन था या नहीं था, या था ही नहीं, आई मीन सीरियसली व्हाट द हेल, कुछ भी, खैर, तो कुछ भी लिख देते हैं लोग, खैर। तो मृच्छकटिका आते हैं, शूद्र का वन कैन नॉट डिनाई द पॉसिबिलिटी, बट अगेन कंसिडरिंग द सोसाइटी, अगेन जैसे मैंने लास्ट क्लास में बोला था, इस क्लास में भी बोल रहा हूं मैं, प्लीज कीप the codes of conduct, the norms of the society that we are talking about. आप उस समय के समाज को आज के समाज से कंपेयर कर सकते हो, लेकिन ये मत भूलो कि उस समय के समाज को भी ध्यान में रखते हुए, कंपेयर करना इज वन थिंग, कॉन्ट्रास्ट करना इज वन थिंग, क्रिटिसाइज करना इज वन थिंग, विद इस समाज को, आज के समाज को ध्यान में रखते हुए उस समाज को, लेकिन डू नॉट फॉरगेट कि उस समाज की क्या नॉर्म्स थे, अगेन दे वर राइट और रॉन्ग, वो वही पार्ट आ गया क्रिटिसिज्म वाला, वो हम ठीक है, बट क्या थे पहले वो जानो, ठीक है, सही गलत की बात हम नहीं कर रहे हैं, वो बाद में आएगा, आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। बहुत
सोच समझ के ये जो ना तेज धारी तलवार बोलते हैं ना, उस पे चलना पड़ता है, ठीक है। तब आप समझ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। खैर, तो शूद्रक जो थे, सिंस लोअर कास्ट पीपल at that time, especially, of course, who did not have this access to education, you know that. So it is one cannot be sure that a person from lower caste or fourth varna would be writing this. Okay, and also Sudraka has been mentioned, this king. So there is high probability. So yes, that's why that's this question at the end that I have put: a king or a commoner? What do you think? Okay, so again you need to analyze it by keeping in mind all the historical context, okay, of this play. Chalo. This is the movie, or you can say a dramatic adaptation. It's a movie, of course, but it's a good movie, I would say. Good मतलब कि मेरे को तो अच्छी लगी, ठीक है। छोटी मूवी है, आई थिंक 45 मिनट्स, अराउंड 44-45 मिनट्स समथिंग, 1 घंटे से भी छोटी है बेसिकली, और 1 घंटे, हाँ 1 घंटे से छोटी है। सो यू कैन वॉच इट, या दिस इज अवेलेबल फ्रीली ऑन यूट्यूब, विच इज ऑफ कोर्स, यूट्यूब आजकल बहुत ड्रामा कर रहा है, तो मूवीज मिलती नहीं है, ऑनलाइन ढूंढते रहो भैया, पता ही नहीं मिलती नहीं है। तो खैर ये मिल गई, बट इट्स अ वेरी लॉन्ग मूवी, मतलब यहाँ पे मैं नहीं दिखा सकता ना, जैसे कि 5 मिनट का नहीं है ना ये। ओके, सो दिस इज द मूवी। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज वसंत सेना एंड दिस इज चारुदत्त, ठीक है। और ये हमारा विलन है, जो ये साले साहब हैं, ये राजा के। राजा डज नॉट शो हिमसेल्फ इन द प्ले डायरेक्टली, बट उनके जो नुमाइंदे हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लेट मी सी क्या, अच्छा अच्छा ठीक, ओके। सो India was active and vibrant in the early centuries of the first millennium. As far as the first millennium is concerned, India was very much active as far as trade is concerned. तो आप बोलोगे कि सर कैसे? Let me give you example. Again, that myth and history वाला concept और conflict, contradiction, controversy और जो भी है वो सब CC आ जाएगा, ठीक है? तो हमारा C बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया। तो क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि इफ यू हैव रेड महाभारता, मतलब थोड़ा मैं केवल उसमें तो खैर सेलेक्टेड रीडिंग्स थी, वैसे भी जनरली अश्वमेघ यज्ञ बाय युधिष्ठिरा, देन जब वो प्रॉस्पर कर रहे थे एंड ऑल दैट, जब अच्छे अच्छे टाइम्स थे, हैप्पी टाइम्स, गुड टाइम्स, यू नो। सो तो उस वक्त क्या था कि इट हैज बीन रिटन, पूरा डिटेल में दिया हुआ है। पता नहीं, मैंने वही ना, मुझे नहीं पता आपने पढ़ा है कि नहीं। चाइना से माल आ रहा है, इधर ईरान से, और मतलब मिडल ईस्ट से, इधर ईस्ट से, साउथ ईस्ट एशिया से, मतलब बहुत जगह से आ रहा है, ठीक है। तो इंडिया उस वक्त एक मतलब उसका ट्रेड था, अगर नहीं होता तो इन कंट्रीज, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चाइना का मेंशन है, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज का मेंशन है, और बहुत सारी कंट्रीज का मेंशन है। कंट्रीज इन द सेंस कि उस वक्त जो नाम थे, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो बेबीलोनियन सिविलाइजेशन एंड ऑल दैट, मेसोपोटामिया एंड ऑल दैट, तो उस वक्त जो भी नाम थे उनके, वो बहुत बहुत लंबी लिस्ट है, मैंने पढ़ा था वो, तो लंबी लिस्ट थी। तो खैर, यानी कि इंडिया, अगर हम माने महाभारता 2500 BC या समथिंग में लिखा गया हो, 3500 BC या जो भी है, मतलब वी आर नॉट सो श्योर कि एग्जैक्टली कब था वो टाइम, बट तो उस समय से चला रहा है। ऑफ कोर्स इंडस वैली सिविलाइजेशन की तो बात ही अलग है, फिर वो हम वो छोड़ो। तो वाइब्रेंट था। अब आप बोलोगे कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कॉमन मासेस को दिखाया गया। और उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने भी प्लेस या मैक्सिमम प्लेस लिखे जाते थे उस वक्त, वो नोबल मैन, किंग, क्वीन, इन सब की बात करते थे। ये प्ले हटके था। भैया तो है मेरे हटके यारा, दिल भी मारे झटके, भैया तो है हटके, ठीक है। तो मेरे भैया आ रहे हैं, तो मैं क्या करूं, ठीक है। तो आगे बढ़ो। तो मैं कह रहा हूं कि भैया जो है, आप लोग ये करो काम, ठीक है। द इंक्रीज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी created a platform for people to relate to one another on a plane of useful give and take. यहाँ से if you have read Geoffrey Chaucer, again I am not so sure because you are first semester students, first year भी नहीं, year में second भी आ जाएगा, but first हुआ। So you will read Chaucer, don't worry.
During Chaucer's time, this mercantile activity trade started in England, okay, like never before. तो वहां से एक नया क्लास का इमर्जेंस हुआ था, मर्चेंट क्लास और मिडिल क्लास, which India saw in I would say 1857 के, of course around 1700 and 1800 के around, I think, if I'm not so wrong. So I think so, because इन लोगों ने पार्टिसिपेट अच्छे से नहीं किया था, 1857 में. So that's why ये क्रिटिसिज्म होता है. मिडिल क्लास इंडिया की बात कर रहा हूँ, 1857 ये इंडिया की हो गया, इंग्लैंड का हो गया चौसर का वो, ठीक है, 1100-1200 के स्टार्ट हुआ था, लेकिन चौसर तो ऑफकोर्स 1340 से 1400 तक रहे थे ऑफकोर्स, लेकिन उससे पहले भी स्टार्ट हो चुका था ऑफकोर्स, लेकिन चौसर के वक्त ज्यादा हो गया था. खैर, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, केवल वैसा नहीं था जैसा अंग्रेजों ने पोर्ट्रेयल किया है इंडिया का in their texts, or some historians as well, I would say. Well, anyway, so commerce helped them increase the scope of their living beyond the narrow confines of a country market to one that offered opportunities of expansion. Okay, यहाँ पे जो है कॉमर्स की वजह से, as I told you, there was not just trade, or you can say क्या बोलते हैं वो, national trade only, but international trade as well. So of course नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था उस वक्त, आई एम वेरी मच अवेयर अबाउट दैट, बट यू शुड टेक दिस कॉन्सेप्ट एंड अप्लाई इट देयर टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा था. ओके, सिंपल. सो एक्सपेंशन का चल रहा था वहां पे, लोगों को मौके मिल रहे थे, ठीक है, मौके पे चौके मार रहे थे लोग, कुछ लोग छक्के भी मार रहे थे. सो हायर लेवल्स ऑफ पार्टिसिपेशन could be seen in the entrepreneurial world of ancient India. अब देखो कितनी बड़ी बात, people were actually very much active and participating, and also this word entrepreneurial, ये देखो entrepreneurial, ये देखो, अरे बाप रे इतना बड़ा कर्सर हो गया. ओके, तो entrepreneurial world of ancient India, तो entrepreneurs थे भाई साहब, ठीक है, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट उसी वक्त से चल रहा है, लग रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ क्या है, इंडिया में क्या है entrepreneurial, मतलब हमें कम ही बताया जाता है. गुजरात की बात अलग है, वहां पे शायद पैदा होते ही बिजनेसमैन बनना है. ओके ओके, गुजराती लोग, सॉरी, आई एम जस्ट किडिंग, मेरे फ्रेंड्स गुजराती हैं, सो जस्ट किडिंग. बट यू नो, एजम्पशन है, ऐसा माना जाता है, और गलत क्या है, सही, अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, तारीफ है आपकी. तो एंटरप्रेन्योरियल बेंट ऑफ माइंड जो था उस वक्त भी था एंशिएंट इंडिया में, सोचो कितनी बड़ी बात है. इंक्रीज्ड कमर्शियल एक्टिविटी and the consequent growth of a money economy led to the proliferation of arts, including literature and crafts. अब यहाँ पे I would like to draw parallel with the Elizabethan era. Okay, if you remember or if you know थोड़ा बहुत literature, क्योंकि आप begin कर रहे हो, so I'm not assuming, और नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अभी आप start कर रहे हो, वही बहुत कुछ टाइम है, और बहुत टाइम है, बहुत कुछ सीखना है, वो तो जिंदगी भर चलेगा. ड्यूरिंग एलिजाबेथन पीरियड, अब आप बोलोगे एलिजाबेथन कौन थी, तो भैया क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट. ओके, अभी क्वीन एलिजाबेथ 2 रूल कर रही हैं अभी. ओके, एनीवे, तो ये क्वीन एलिजाबेथ जो थी फर्स्ट, इनके वक्त, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल मच, बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही थी. कॉलोनियल एक्सपेंशन भी एक तरह से स्टार्ट हो चुका था. 1600 में, यू नो दैट, ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हो चुका था इंडिया में. तो उससे पहले ये बाकी यूरोपियन कंट्रीज जो थी, क्योंकि इंग्लैंड इज पार्ट ऑफ यूरोप, इट्स नॉट यूरोप पर से, राइट. सो बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी, डच, पोर्चुगीज एंड ऑल दोज, फ्रेंच एंड या मेनली दोज पीपल, they were trying to colonize different parts of the world. Okay, वेस्ट इंडीज वाला में पता ही है ना, कोलंबस वाला एंड ऑल दैट. तो ये वास्को डी गामा, फिर अमेरिको वेस्पुगी, उसने पुग्गी बजा दी अमेरिका की. ओके, जस्ट किडिंग, उसी के नाम पे अमेरिका पड़ा है, अमेरिको वेस्पुगी. खैर, तो उस वक्त क्या हुआ, अभी मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, मैं इसमें आऊंगा. उस वक्त क्या हुआ कि भैया हुआ ये कि जब ट्रेड फ्लरिश्ड, they had a lot of money. Queen had a lot of money. So you'd be saying, yeah, of course, Queen would have a lot of money. No, guys, relax. 100 years war was fought before that. I mean, of course, बहुत पहले.
एंड ऑल्सो उनके डायनेस्टी के बीच में भी लड़ाई वड़ाई होती थी. तो इन सब के बाद and heavy taxes were imposed, and but during Queen Elizabeth I, either fortune was on our side or whatever, but घुमा फिरा के बात यह है कि literature flourished. My main point is that there was money, prosperity, and literature flourished. Shakespeare भी उन्हीं के एज में आए थे, in case you don't know. And Christopher Marlowe, जिसको कि often he is seen कि भाई वो मरा नहीं था लड़ाई में. एक्चुअली वही शेक्सपियर था ऐसा बोलते हैं कुछ लोग. आई एम नॉट सेइंग दैट. ठीक है. तो मतलब जितने यूनिवर्सिटी विट्स थे एंड ऑल दैट, यू नो, स्पेंसर, बहुत सारे लोग आए थे. खैर, यहाँ पे अगर आए हम इंडिया की बात करें, अब हम आते हैं यहाँ फर्स्ट पॉइंट पे. सो दैट शोज कि जब आपके पास पैसा हो, व्हेन यू हैव प्रोस्पेरिटी, ठीक है, व्हेन यू आर प्रॉस्पर आई मीन, और कमर्शियल एक्टिविटीज गोइंग वेल and everything is economically flourishing, okay, then literature would flourish. Then literature would come out of the shadows, and it will show its glory. So that's how any era sees the glorious days of literature, when it is prospering. The reason is very simple. अगर आपके देश में भूखमरी चल रही है तो आप लिटरेचर नहीं लिख सकते. और कहा भी जाता है, मेरे ख्याल से बहुत पहले किसी ने कहा था या सुना था या पढ़ा था, मुझे याद नहीं है, कि लिटरेचर जो है, मैं एग्जैक्टली कोट नहीं कर रहा हूँ बट मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, कि लिटरेचर जो है ये पास टाइम ऑफ लग्जरियस पीपल, या सॉरी नॉट लग्जरियस पीपल, इज अ लग्जरी. आई थिंक लिटरेचर इज लग्जरी एंड पीपल हु आर वेल टू डू और समथिंग दे रीड लिटरेचर. सिंपल वर्ड्स में कहूँ मैं, ही घुमा फिरा के, पैराफ्रेज को मारो गोली, कोट्स को. मैं कह रहा हूं कि अगर लिटरेचर वही पढ़ते हैं, अगेन जनरल में बता रहा हूं, तो ऐसा कुछ नहीं, आप कोई भी पढ़ सकता है. तो जो मतलब फाइनेंशियली जिनका बैकग्राउंड सही है एंड ऑल दैट, राइट, मतलब इट्स काइंड ऑफ लग्जरी थिंग, इट्स अ थिंग ऑफ लग्जरी टू रीड लिटरेचर, टू एंगेज इन लिटरेचर. इट्स जनरली अज्यूम्ड. अगेन दिस इज नॉट एब्सोल्युटली राइट. राइट, आगे बढ़ते हैं. Ancient literature drew useful influences from the life of the times. Any era shows its impact on the literature of that era. It is not devoid of the influences of that particular era in which it is written or in which it is set, because we all are a product of our culture, no matter how much we want to deny it. And especially when you are young, you want to deny it. Rather, you don't accept it. Deny and don't accept, kind of same, but you know, my emphasis is on don't accepting it. So you don't accept it. How can I be influenced by the cultural norms, by socio-political settings and everything, right? I don't think so. Yes, of course. It's not necessary. Rather, I would say, first accept it, then move above it, move beyond it. अब ये थोड़ा मैं फिलोसॉफिकल हो रहा हूँ, बट वो इसके लिए आप कह सकते हो कि ये लोग जो मॉन्क कह सकते हो, या यू नो एनलाइटनमेंट टाइप, यू नो, देन यू कैन अचीव दैट. यू आर इन्फ्लुएंस्ड, जिसपे आपका यू डू नॉट हैव एनी कंट्रोल, सम यू नो जो भी कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, बहुत सारे सोशल पॉलिटिकल एंड एवरीथिंग, ऑल द अप्रोचेस जो भी होते हैं ना, उनके सारे इन्फ्लुएंसेस हैं आपके ऊपर. एक्सेप्ट इट. नाउ discard them. Don't accept them. Now move beyond them. How can you move beyond them? एक मिनट में समझा देता हूँ. इन्फ्लुएंस की बात हो रही है, that's why I'm talking about this. For example, अगर मान लो कोई इंसान है, ठीक है, मैं जनरल एग्जांपल लेता हूँ. कोई एक इंसान है, वो उसको बोला गया कि बिल्ली जो है वो रास्ता काटेगी, तो आपके साथ, अगर आपने उसको क्रॉस कर दिया पहले, तो आपके साथ यू नो इविल, बुरा कुछ भी हो सकता है. तो उसने बोला अच्छा, डरने लगा. उसने बोला यार चेक करता हूँ. बिल्ली ने रास्ता काटा, उसने क्रॉस किया, बुरा हुआ, उसको डर लगा. उसने बोला फिर कोशिश करता हूँ. बिल्ली ने रास्ता काटा, हुआ. तीसरी बार हुआ.
उसने बोला यार क्या करूं, बोला फाइनल, बिल्ली ने रास्ता काटा, बुरा नहीं हुआ, फिर चौथी पांचवी, एंड नाउ ही डजंट गिव, बल्कि बिल्ली रास्ता का पहले वो दौड़ता है कि पहले मैं ही क्रॉस करूंगा. Well, I'm talking about myself. So yeah, it's just one of the examples. I have experimented with a lot of different things, beliefs. I shattered them, I destroyed them completely, and then I framed and formed new beliefs. Okay, and some of the beliefs कि जो पहले थे क्या वो सही है, कुछ सही रहे, वो पता लग गया कि नहीं भाई काफी एक्सपेरिमेंटेशन हो गया, सही है. So experimenting basically, okay, do not taking anything for the way it has been given to you. I'm talking about the beliefs, of course. And it does not mean disrespecting. First of all, very important thing to understand. See, again, do not go to faith. I think faith is a sacred thing. It doesn't matter kaun sa. I know I'm entering into a very dangerous zone right now, but I will just touch, छू के निकल गया. Just kidding, just kidding. कहने का मतलब है कि भैया उसको बात छोड़ो, उसकी बात ही नहीं करते. So influence होता है, but if you are able to move beyond it, आप अपने आप को एक इंडियन ना सोच के, वेट सभी लोग अरे भैया अरे इंडियन ना सोच के, एशियन ना सोच के, इस दुनिया का ना सोच के, बोले अरे पगला गए हो क्या. सुनो, गैलेक्सी का ना सोच के, अच्छा ओ अच्छा यूनिवर्स का सोच सकते हो ऑफ कोर्स, और कहाँ जाओगे पैरेलल यूनिवर्स में, तो वो भी तो एक यूनिवर्स में पार्ट होगा, बड़ा चला गया नहीं कुछ. तो वहां से देखो अपने आप को, पिद्दी भी नहीं हो, कहने का मतलब है यू आर नॉट इवन अ स्पेक ऑफ डस्ट, इवन दैट्स लाइक अ प्लैनेट, स्पेक ऑफ डस्ट भी उस कंपैरिजन में, यू आर नथिंग, राइट. आई रेड इट ऑन गूगल, अब गलत होगा तो गूगल ही गलत होगा, मैं नहीं. 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज मैंने पढ़ा था, ठीक है, 2 ट्रिलियन, नॉट मिलियन, नॉट बिलियन, ट्रिलियन. आते हैं पॉइंट, हम लोग एक गैलेक्सी हैं, उसमें कितने सोलर सिस्टम इधर दिखता है कोने में कहीं, सोलर सिस्टम, अर्थ छोड़ो, सोलर सिस्टम, क्या औकात है हमारी, बहुत ज्यादा ऐसा लगता है बट है नहीं. कमिंग टू द पॉइंट, इसका मतलब ये नहीं कि छोटे समझो, लेकिन इतना बड़ा भी मत समझो. एंशिएंट लिटरेचर ड्रू यूजफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है. ऑल्सो if the prevailing life had a strong economic activity working in it, the literature of the period will also carry an impact of that activity. Okay, जो prevailing life है had a strong economic activity working in it, जो literature होगा उस समय का will also carry an impact of that activity in it. यानी कि उस literature में the things, the major economic things would be talked about. For example, while I was traveling in train, तो मेरे को किताब खरीदनी थी, मेरे पास उस वक्त बहुत समय की पहले की बात है, बहुत समय बाद लड़की, ठीक है, तो मचाएंगे नहीं, मैं ट्रेन से उतरा, मतलब रुकी थी स्टेशन पे, ऐसे ही नहीं उतर गया. तो वहां से मैंने किताब खरीदी, किताब थी चेतन भगत के दोस्त की या यूं कहो कि इंस्पायर्ड होके उसने लिखा था, वो चेतन भगत के इन्फ्लुएंस में था वो, मतलब वो कांटेक्ट में था एक तरह से. मैंने पढ़ा पूरी किताब में बैंकिंग, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट बैंकर था. मैंने कहा पका दिया यार, मतलब सीरियसली, नॉवेल तो मैंने खत्म कर दी उसी ट्रेन जर्नी में ही, लेकिन बेकार टाइम. ये बैंक अबे ठीक है, हद हो गया, इतना बकवास नॉवल था वो. खैर, सो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती है वो आपके लिटरेचर में प्रदर्शित होती है. द राइटर शूद्रका यूजेस अंडर एन एस्थेटिक प्लान many variations of human response to the world around it. जो राइटर शूद्रका है वो एक इंसान के how would a not single how would people react to the same situation in different ways. He is showing that कि situation might be same but we all respond in a different way. For example, if a person is lying on road unconscious, of course he is a drunkard, you can say, okay, not of course, sorry, आदत हो गई है, अब तो आदत सी है मुझको ऐसा जीने में. खैर, तो if he is lying unconscious, he is a drunkard, he is, you know, he does not know कि कहाँ क्या हो रहा है या क्या हो रहा है, but तो what will you do? You have many options, not just one. You can कोई पत्थर से ना मारे दीवाने को,
ठीक है, पत्थर से मत मारो, कुछ लोग पत्थर मार देंगे, कुछ लोग मजाक करेंगे, कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं, और कुछ लोग उठाएंगे, कुछ लोग कॉल करेंगे पुलिस को या एम्बुलेंस को, मतलब जो उनको ठीक लगेगा, और बुलाएंगे, बोलेंगे देखिए भैया इनकी थोड़ा ख्याल रखिए। और जब आप हेल्प कर रहे होंगे तो कुछ लोग प्रेस करेंगे, कुछ लोग आपको ये बेवकूफ भी बोलेंगे, और कुछ लोग ऐसे वर्ड्स भी बोलेंगे जो यहाँ पे मैं नहीं बोल सकता। तो अगेन मेरे साथ हो चुका है। सो क्या बात है, मैंने उठाया, एक थे उनको, फिर पुलिस को बुलाया, मैंने कहा इनको ले जाइए, मतलब मैं अरेस्ट नहीं करवा रहा था, मैंने बोला कि एम्बुलेंस बुलवाइए, और क्योंकि वहीं पे आसपास थी ट्रैफिक पुलिस, तो मैंने कहा इनको, तो गाड़ी आई बकायदा, उस आदमी को उठाया गया अंदर, मैंने बोला कि देखिए सर देख लीजिएगा, तो ही वाज लाइक कि आप चिंता मत करिए, हम इनको सही से इनका ख्याल रखेंगे और इनका घर पता करके इनको घर छोड़ देंगे। मैंने कहा ठीक है। जब मैं ये कर रहा था तो कुछ लोग थे, ऑफ कोर्स मैं जानता था उनको, they were not even helping, rather I heard them saying, making fun of me. I was like कि मेरे को ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, बिकॉज फर्क पड़ता तो मैं उसकी मदद ही नहीं करता पहली बात तो, विच आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे पता है कि दुनिया कैसी है। तो इट इज नॉट जस्ट अ सिंगल इंसिडेंस, ऑल आई एम सेइंग इज कि कैसे आप रिस्पॉन्ड करते हो, ठीक है। क्या शूद्र का shows a peculiar linkage between society and art. As I told you, I'm telling it to you for the umpteen, अच्छा umpteen ज्यादा हो गया, एक और बार, कि सोसाइटी जो है और आर्ट जो है, ऐसा आपने सुना होगा, लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स सोसाइटी, है ना, लिटरेचर इज अ मिरर टू सोसाइटी। वो फिर अलग हो गया, आप दिखाना, मिरर दिखाना, मेरा मिरर मिल नहीं रहा है, कहाँ है मिरर, तो मिल रहा है, कंघा नहीं मिल रहा है। ओके, जस्ट किडिंग नहीं, सच में नहीं मिल रहा है, ढूंढना पड़ेगा। खैर, सोसाइटी एंड आर्ट। तो सुद्रका हैज इन माइंड अ टाउन विद एन एक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, मैंने बता दिया, काफी एक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है, और क्योंकि वो एक तरह से राजा है, अभी हम उसको राजा ही मानते हैं, तो मतलब मानते क्या है होगा, बट यू गॉट द पॉइंट, मैंने पूरा डिस्कशन किया है। अ पावरफुल सेक्शन ऑफ द रिच एंड प्रिविलेज्ड as well as a whole group of officers who on the sly will violate the existing norms and rules. Okay, यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, बताता हूँ मैं। देखिए हुआ क्या इसमें, कहानी में क्या है, जो राजा साहब हैं, मैं सुद्रका की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्ले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मृच्छकटिका। उस प्ले में जो राजा साहब हैं वो तो हमें दिखते नहीं है, लेकिन जो उनके साले साहब हैं, ब्रदर इन लॉ, he is actually very much actively engaged in an in I would say scandalous activities. He is pursuing a woman in the beginning of the play, and not just pursuing her, but with lustful intentions, with evil intentions, ill intentions, and of course he wants to molest her. So that woman is of course Vasant Sena, the prostitute, या courtesan was the right term, courtesan. And she of course then she was like, बहुत मुसीबत से, मुश्किल से she उससे पीछा छुड़ाती है, gets rid of him. What happens is, people at that time believed that a courtesan or prostitute, यहाँ पे दोनों टर्म यूज करूंगा मैं, तो वो freely available if you have the money. If you have the money, you can buy her, and get physical pleasures from her. That was the belief, or you can say given code of society. Again, right and wrong की हम बात नहीं कर रहे हैं, of course it's wrong, but जो कोड था मैं वो बता रहा हूँ, okay. But जब in the beginning of the play, when you will read this scene, when you will go through this scene, there is a very interesting thing that has been shown. A woman, I mean a courtesan, is not just a physical, or what should I say, objectified, is okay, rephrase it. A courtesan is not just someone who can be purchased like an object. She's not a thing to be violated by buying her. You cannot just go and enjoy her. Yeah, I'm using the word enjoy her by just giving some money to her. No, she has feelings, emotions, and she can also reject or accept depending on her whims and choices, and also if she wants to make out with you or not. So money is not the only criteria for getting love from her or getting pleasures from her. It is not the only thing. Okay, it also depends on her wish, whether she wants to make out with you, whether she wants to give you that pleasure or not. Her body is like a temple. If she wants to use it,
if she wants to it's kind of trade, give and take, but it's not just simple. वो ऐसी दुकानदार नहीं है कि आप जाओगे, yes I know मैं कैसे words use कर रहा हूँ, but to make you understand I will have to use these words, क्योंकि मैंने वो words भी use किए जो नहीं मतलब जो करने चाहिए, जो अच्छे courtesan and the wife, बहुत ही सुशोभित अच्छे वर्ड्स नहीं है, आई नो, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट वी आर डीलिंग विद राइट नाउ. ओके, थोड़ा दिमाग ओपन अप करो. इफ यू आर रीडिंग लिटरेचर, ये सब चीजें बहुत कॉमन है एंड इट्स नथिंग एक्चुअली. आई हैवंट इवन स्टार्टेड इट. ओके, इन अ वे. ओके, कमिंग टू द पॉइंट. सो ये जो चीजें हैं, मतलब वो क्या करती है वसंत सेना कि शी रिजेक्ट्स हिम एंड इट शोज दैट शी इज नॉट द वुमन हु कैन बी बॉट. डिस्पाइट बीइंग अ कोर्टिजान, शी इज अ वुमन जो अपने डिसीजंस ले सकती है और वो डिसाइड करेगी मेरी बॉडी है, मैं किसको देना चाहूंगी. यस, पैसे लूंगी, बट आई एम नॉट एन ऑब्जेक्ट टू बी सोल्ड. आई विल चूज, इट्स माय डिसीजन. So basically, she is rendering some services to you in exchange for money, but she has the right to choose who should her customer be. ये काफी परफेक्टली मैंने लास्ट में आपको क्लियर कर दिया, ठीक है, कि वो अपने कस्टमर खुद चुनेगी. बॉडी इज फॉर बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन, सोसाइटी एंड ऑल दैट, मजबूरी भी कह सकते हो, बट शी इज वेरी रिच, नो डाउट. और उसके कस्टमर्स हाई फाई लोग हैं. एंड दिस कस्टमर, दिस ब्रदर इन लॉ is not a normal person. He is a brother-in-law of a king himself, not a normal person. And of course he has money, no doubt. But is she ready to give her body to this person? No, definitely not. The reason is she does not like him. The reason is he is an ill-intentioned person. He is an evil man. And love and affection, which a woman seeks, which is again a very different topic altogether, but it's very deep. To understand the love, to fathom it is, I don't think it's possible for a man to do that. Yes, we can try, but it's not easy. It's not an easy job. So she loves Charudat. And Charudat is a poor person. Charudat was once a rich man. पहले कभी अमीर हुआ करता था, ठीक है. But due to his philanthropic, altruistic engagements and things, his attitude, he ended up being a poor man. Okay, so now, despite he being a poor man, this Vasant Sena, courtesan, loves him, and her friend asks her, "यार तुम पगला गई हो? He is a poor man, so that's why I love him more." I think ये quote है. That's why I love him. So you can see that she is not after any money. She is after love. She is after a good human being. And this thing, this quality of goodness, she finds in Charudat. ठीक है, वरना वो पैसे के लिए करना होता तो वो जो ब्रदर इन लॉ था उससे करने में क्या दिक्कत है. But you got the point. It's not about money, and everything is not about money, and it's not always about money. Okay, more than money, people need love, affection. It doesn't matter who that person is. So now this will bring to the question, bring to your mind, or it should actually, should prostitution be legalized in our country? So this is a very heavily debatable topic, controversial topic, no doubt. So you need to think on this. You can think on this. You can also do a debate amongst yourself. ठीक है, since we are not in offline class, so otherwise अच्छा healthy discussion भी हो जाता, but we don't have that time also. So you can do that. And yes, regarding that, I will take 1 minute to suggest regarding this debate thing. Some people were talking about how to improve English and all that, basic things students do. It's all right. So what you can do, I suggested in one of the different classes, I think, what you people can do via Google Meet or via Zoom, और जो भी तुम्हें ठीक लगे, बहुत apps हैं. You people can form a group amongst yourselves. सबको involve करो, थोड़ा करो, तुम्हारी मर्जी है. And choose a topic for a week
ठीक है, कि इस वीक का टॉपिक ये रहेगा फॉर अ पर्टिकुलर वीक, एंड देन डिबेट ऑन दैट और डू ग्रुप डिस्कशन ऑन दैट. दिस विल ऑल्सो नॉट, और हाँ कोशिश करो वो टॉपिक जो हो आपके क्वेश्चन आंसर से हो, इस आपके सिलेबस से हो. दैट विल ऑल्सो help you prepare for the examination and also help you cover your syllabus at the same time, make you proficient in that area and also in practicing English communication skills. So अब इस पे ज्यादा डिटेल में क्या देना है बाकी यू नो दैट हाउ टू डू इट. इफ यू डोंट नो, ऑर्गेनाइज करो ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, टेलीग्राम ग्रुप बनाओ अपना सेपरेट उस चीज के लिए स्पेशली, और उसमें इंगेज हो सकते हो. मेरा आइडिया है, बाकी आप लोग करना चाहो सजेशन है, नहीं इट्स योर विश ऑफ कोर्स. ओके, हाँ कहाँ थे. Sudrika has in mind a town with an active administration, I told you, a powerful section of the rich and privileged, I told you brother-in-law, as well as whole group of officers who in those on the sly will violate the existing norms and rules. तो as far as existing norms and rules को violate करने की बात है, तो खुद राजा के ही साले साहब, brother-in-law, he is violating it. He is trying to molest a woman in the daylight, in front of, you can say, if not exactly in front, but you understand, right? No one is going to question him. So how is he able to take such steps? Definitely Raja knows about it, the king knows about it, he is not unaware. You cannot say कि or pretend कि नहीं राजा को पता नहीं होगा. कैसे नहीं पता होगा यार, he would be aware about this thing. So उसको वो फ्री पास दिया हुआ है, ठीक है, कि करो मुझे करना है. The point is that a situation such as this might give an occasion to clever manipulators for seeking pleasures of the senses. Okay, जैसा कि मैंने बताया, इसी को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे कि आप रूल्स को आप स्ट्रिक्टली जहाँ फॉलो नहीं कर रहे हो, जहाँ पे कि आप जो गला काटने वाले होते हैं, हैंगमैन या फिर जो भी बोलते हैं, सो दीज पीपल, किलर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल किलर्स, क्या बोलते थे उनको गला काटने वाले को, अरे वो छोड़ो छोड़ो. सो यू गॉट द पॉइंट. सो चांडाल बोलते हैं हिंदी में, बट आई एम लुकिंग फॉर दैट, अभी ध्यान नहीं आ रहा है. एनीवे, सो क्लेवर मैनिपुलेटर्स, दे वांट, उनको भी आप कर सकते हो, ब्राइब कर सकते हो कि ठीक है यार इसको थोड़ा जल्दी मार दो या फिर इसको बाद में मारो या मत मारो. एंड देयर इज आल्सो इन द प्ले that these chandals, word is quote unquote of course, but they have been called that, these people who are given this job of killing Charudat बाद में, so क्योंकि उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया, नो दैट, वसंत सिन्हा को मारने के लिए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था. उसको मारा था ब्रदर इन लॉ ने ही कोशिश की थी एंड ऑल दैट, बट हैप्पी एंडिंग होती है, डोंट वरी अबाउट इट. हम डोंट वरी, हमारे पास अभी 3 और सेशंस हैं, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे. ओके, डोंट वरी अबाउट इट, इट्स जस्ट द बिगिनिंग, अभी तो पार्टी शुरू है यार. ओके, तो डो पुश मारिया करो, नहीं मत मारा कर, व्हाट द हेल, नो डोंट. खैर, जोक्स अपार्ट, ऐसे फालतू जोक क्यों करता हूं मैं. ओके, तो गिव्स एन ओकेजन सीकिंग प्लेजर्स ऑफ द सेंसेस. तो ये सब आप वायलेट करके, ब्राइबरी करके, ब्राइब चलता था उस वक्त. कहने का मतलब है कि ये सब जो करप्शन है उस वक्त था. आगे बढ़ते हैं भैया. द इविल मैन इन परसूट ऑफ वसंत सेना हैव थ्रोन कॉशन टू द winds. मैंने बताया ना, यही was evil man है, and decided to capture and molest the woman if they get their hands on her. Of course they want to molest her, they want to physically, you know that, I mean, ये तो I don't understand this. Okay, why would they? Khair, see, first of all, if a woman is ready to give love to you, that's bliss, no doubt. If a woman is not ready to give love to you, stay the hell away from her. Stay away from her. Leave her alone. Don't trouble her anymore. Okay, just let her be. Okay, and don't criticize her. Don't do anything. Just, भाई ठीक है, वो उसकी wish है. She is a person. Okay, look at her not just in, oh, I mean seriously, what the hell? Not just as a body, but as a person. If she doesn't want to give you love, okay, just assume. If a woman doesn't want to give love to you, मिल भी जाएगा प्यार, तो प्यार, पहली बात तो प्यार मिलेगा नहीं, प्यार वर्ड नहीं है पहली बात. अगर आपने उसके साथ मतलब मान लो प्यार कर लिया है जो भी, और वो लेकिन प्यार नहीं करती, क्या मतलब, हाउ विल यू गेट इट? आई मीन
is feeling emotions, you know, romance. If you're not getting it, I mean, don't disturb her यार, come on. थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखो, अपने प्रति भी, दूसरे की रिस्पेक्ट भी करो. देखो, वो जो जनरल बातें हैं वो तो है ही, मतलब दैट्स ऑब्वियस कि यू शुड नॉट डू दीज थिंग्स. बट मैं थोड़ा डीपर लेवल पे जा रहा हूँ कि अगर हम और सोचें तो क्या करोगे, मतलब व्हाई डू यू वांट टू दैट, राइट? एक ऐसे आदमी बनो जिससे औरतें प्यार करें. अच्छा, ज्यादा हो गया क्या? सॉरी, कहने का मतलब है इंसान प्यार करे. इसको उसमें मत लेना. सभी प्यार करें. ऐसे आदमी बनो जो सभी प्यार करें. आप इतने अच्छे बनो. नहीं भी प्यार करे कोई, सब आप सबको प्यार करो. वैसे नहीं, इंसानियत वाला. ठीक है, इंसानियत वाला प्यार करो सबको. ओके, जोक्स अपार्ट, कहने का मतलब है ये सब मत करो जो गलत चीज है. मैं डीप में जाके कोशिश कर रहा समझाने की, लेकिन दिक्कत ये है कि मुझे ये नहीं पता कितने लोगों को वो समझ आया मैं जो कहना चाह रहा हूँ. ठीक है, सिंपल सी बात है, रिस्पेक्ट वुमेन, no doubt, वो obvious thing है. That's why I'm not saying it. It's obvious. I mean, it's like taking breath, you know, inhaling oxygen. Of course, you should respect women, respect everyone. And दूसरे की जिंदगी तबाह मत करो. सिंपल सी बात है. आगे बढ़ते हैं भैया, बहुत हो गया. But you got the point. They do not seem to be afraid of the legal machinery active in the town. Why? Because भैया, hand in glove चल रहा है. There is a nexus between the criminals and the legal machinery. ठीक है, जिनको सजा देना है वही मजे कर रहे हैं. They don't seem to be afraid of the legal machinery active in the town. The crime they intend to commit may land them in jail. Of course, it's a heinous crime. They should be, well, given the harshest punishment. But they seem not bothered by such an apprehension. Why? राजा ही क्या बोलते, हमारे चाचा विधायक ऐसा ही है ना, वो जाकिर खान वाला सीजन जो चला था प्राइम वीडियो पे. तो जानते मेरा दिल्ली में बोलते हैं ना, जानते मेरा बाप कौन. तो वैसा ही काइंड ऑफ सिचुएशन है. जानते मेरे जीजा जी कौन है? तो दिस जीजा जी इज द किंग and this brother-in-law is the person who is doing all these evil things. It presents in tangible ways the clash between the civilized norms and baser motives of men away from the light of law and constitution. ये tangible ways में दिखाता है जो clash है, जो conflict है, जो civilized norms है. civilized मतलब कि civilized बोलते हैं ना, be a civilized being, right? Behave in a proper manner. Okay, should be very, you know, you should be very civilized and all that. अच्छा ठीक है, जोक नहीं. बट सिविलाइज मतलब बेसिकली एक एटिकेट, फॉर्मल तरीका, या फिर फॉर्मल नहीं भी हो तो एक इंसान की तरह बिहेव करो ना. जानवरों की तरह क्यों कर रहे हो? सिंपल सी बात में. एंड बेसर मोटिव्स ऑफ मैन. देखिए, सच्चाई ये है कि हम सबके अंदर, मैंने शायद पिछली क्लास में बोला था कि दो तरह के अगेन पीपल, कुत्ते हैं, जानवर हैं, पता नहीं क्या है, गुड एंड इविल है. ओके, सो जिसको आप ज्यादा फूड दोगे वो उतना ज्यादा शक्तिशाली बनेगा. तो ऐसा नहीं कि कोई इंसान परफेक्ट है, बट दिस स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन इज अ गुड थिंग. यू शुड कीप ऑन स्ट्राइविंग एंड कीप ऑन इरेडिकेटिंग, रिमूविंग द बेसर थिंग्स दैट आर इनसाइड यू, राइट? जो इल विल्स है, जो इल इंटेंशंस हैं, जो बुरे ख्याल हैं, उन सबको हटाते जाइए धीरे धीरे. समाज है, ठीक है, इन्फ्लुएंस होता है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन दिक्कत यह है कि उसको आप एक्सेप्ट करके आप वही बन जाए. दिक्कत तब है. बुरे विचार आना दिक्कत नहीं है. If bad thoughts are coming into your mind, that's not the problem. The problem is accepting those bad thoughts. Wow. Accepting those bad thoughts and making them your own. Okay, ऐसे समझो. Bad thoughts है, कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स. आए, अपना जो भी है षड्यंत्र या जो भी है प्ले वगैरह किया उन्होंने, ड्रामा, गए. नहीं भी गए तो शांति से कहीं, मतलब यू नो, दब गए सबकॉन्शियस माइंड. अब आपने उसको, सबकॉन्शियस माइंड में बैठना इज नॉट अ गुड थिंग, आई एम टेलिंग यू. उसको जाने चाहिए बाहर. लेकिन अब आप उसको उभारो, उसको अपना बनाओ. अच्छा अच्छा अच्छा, दैट्स बैड. बुरे विचार आना बैड नहीं है, बुरे विचार को अपना बनाना बैड है. ओके, इंसान बुरा नहीं होता है, इंसान के अंदर बुराई होती है. दोनों में फर्क है. ओके, और जिसके अंदर ज्यादा बुराई हो जाए तो फिर वो बुरा बन जाता है. तब आप कह सकते हो कि वो इंसान बुरा है. टेक्निकली कहना सही भी नहीं होगा, बट
सच्चाई तो यही है, क्योंकि वो अच्छा बनना ही नहीं चाहते तो आप कर क्या सकते हो, तब आप बोल सकते हो कि हाँ ठीक है वो बुरा हो गया। चांसेस फिर भी रहते हैं कि वो अच्छा बन सकता है, बट अगेन दैट्स अ वेरी, उसकी विश ही नहीं है भैया, क्या कर सकते हो, चांसेस फिर भी, आई वुड से। एनी, द फाइट इज बिटवीन, और हाँ, मोटिव्स ऑफ जो मैन है अवे फ्रॉम द लाइट ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, ये सिविलाइज्ड नॉर्म्स जो है, अच्छे इंसान बुरे इंसान के बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, ये ये दिखाया गया है। द फाइट इज बिटवीन मोरालिटी सपोर्टेड बाय आइडियल्स एंड प्लेजर सीकिंग बाय अ पैक ऑफ लॉ ब्रेकर्स। जो मोरालिटी है वो उसके बिटवीन फाइट है, और जो आइडियल सपोर्ट करते हैं, जैसे कि आइडियल मैन हो गए आपके चारुदत्त हो गए, ठीक है, उसके फ्रेंड्स हो गए गिने चुने, ऑफ कोर्स वसंत सेना, नो डाउट, और इविल जो मैन है, प्लेजर सीकिंग मैन है, पैक ऑफ लॉ ब्रेकर्स, ठीक है, पैक ऑफ वुल्स लग रहा था कि मैं लिख दूं, लेकिन पैक ऑफ लॉ ब्रेकर्स इज द राइट टर्म हियर। सो वो हो गए, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एंड में जो जीत है वो दिखाएगी, होगी प्यार की जीत, ठीक है, नैनो में नैनीताल तात हीतम तलैया, तो होगी प्यार की जीत, तो अच्छाई की जीत हुई, प्यार की जीत हुई, ठीक है, in the end of the play, at the end of the play. What should art do in such a case? Is art only for art's sake, as Oscar Wilde had suggested, or more than that? ठीक है. There is a famous, of course, quote by Oscar Wilde: "Art for art's sake." कि art का कोई और purpose नहीं है. The purpose of art is not to enlighten you. The purpose is not, art is not to modify, rectify, improve society or improve a human being, but it's only for art's sake. According to Oscar Wilde, which I disagree with. I love his works. I have read, I think, almost all his works. I think almost all. अगर कोई छूट गया हो गलती से, that's a different thing. But Oscar Wilde का मैंने सारे books पढ़ रखी हैं almost. Again almost, क्योंकि छूट सकते हैं, but मेरे हिसाब से मैंने सारी पढ़ी हैं. तो he is my god. एक एक लाइन आप खासकर दो पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, if you read that, एक एक लाइन you can quote it. Coming back, what should art do in such a case? तो ऐसे समाज में आर्ट का क्या रोल है और आर्ट क्या कर सकता है? एंड हियर बाय आर्ट आई मीन लिटरेचर एज वेल, यू नो, प्लेज एंड ऑल दैट। क्या कर सकता है? ये क्वेश्चन सोचने वाली बात है। कैन आर्ट इंप्रूव सोसाइटी? यस, इट कैन। हाउ? इट कैन मेक यू थिंक। हैव यू हर्ड अबाउट एपिक थिएटर? नॉट एपिक, दिस एपिक जो हम महाकाव्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एपिक थिएटर, फोर्थ वॉल का कॉन्सेप्ट, एलिनेशन का कॉन्सेप्ट, एंड देन इससे क्या पॉलिटिकल जागरूकता ला सकते हैं, सोशल अवेकनिंग ला सकते हैं. All these things are very much there. We will read it later on, of course, don't worry. So what should art do in such a case? Art can awaken the society. How, you will ask? जिस तरह की बुक्स यू पढ़ते हो, प्लेस देखते हो, मूवीज देखते हो, that shapes your mind, that shapes your attitude. If you read good books, if you read canonical literature, I would use the term, phrase, canonical literature, let's say, या क्लासिकल लिटरेचर, ठीक है, हाई, यू नो, हाई ट्रेडिशन वाले लिटरेचर, ग्रेट ट्रेडिशन सो कॉल्ड. ग्रेट का मतलब फिर मैं वहां पे वो दूसरे वाले में नहीं जा रहा हूँ कि लो ट्रेडिशन बुरा हो गया, बट यू गॉट द पॉइंट. कहने का मतलब है दोज टेक्स्ट व्हिच हैव पास्ड द टेस्ट ऑफ टाइम, व्हिच आर स्टिल सर्वाइविंग. सो इफ यू रीड देम, you will learn a lot. It's not just for one era, for one age. Again, I will repeat, it's for all the ages to come, right? So Shakespeare, of course, again. So, but you got the point. कि art आपके mind को influence करता है, the way you think, the way you behave. If you read about a noble character, and most probably you will like it, then you will try to imitate or use the vocabulary given in that text, the etiquettes that a person is showing in a play, uh, the noble qualities. You will try to inculcate them within yourself. These are basic things. And as far as social awakening is concerned, it can make you think about, should, for example, should art, should prostitution be legalized, and should prostitutes be treated the way they are assumed to be treated, or the way they are generally treated, or should be treated in a dignified way? Should they be treated as just as any person who is just rendering a service in exchange of money? For example, right now I am rendering my services, which I love, which I'm very much passionate about. I love it.
I sometimes forget कि मतलब टाइम क्या हुआ है. ओके ठीक है, मतलब लेट हो जाता हूँ, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. ओके ओके, कमिंग टू द पॉइंट. I love it, right? So similarly, there are lot of other jobs, professions. People are doing that, and why there is this view regarding prostitutes that in they are seen very looked down upon in society. Again, is that a good thing? uh, if they are doing it अपनी मर्जी से, that's a different thing. But जो forcefully किया गया है जिनके साथ, of course it's not. And any woman, भगवान ना करे उसको ऐसा करना पड़े. बट हम वहाँ पे उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं जहाँ पे दे आर डूइंग इट इन मजबूरी या जो भी है. अगेन द पॉइंट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि इम्प्रूव सिचुएशन ऑफ कोर्स करनी चाहिए, बट हमारा अभी उस पर हम डिटेल नहीं कर रहे हैं, डिस्कशन करना चाहिए. बट जहाँ तक जो है अभी, उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए विद रिस्पेक्ट. ऑफ कोर्स यू शुड टेक देयर कंसेंट. इट्स नॉट जस्ट दैट यू पे. एंड जैसा कि इसमें वसंत सेना ने दिखाया, सो लॉट ऑफ थिंग्स. कहने का मतलब है ट्रीट देम एज अ ह्यूमन बीइंग, नॉट एज एन ऑब्जेक्ट that you indulge in for pleasure. Khair. What should art do? Yes, what should art do? Mrichikatika may give the impression of being a comic play meant to offer titillation alone. Okay, Mrichikatika aisa lagega, this play, that it's a comic play. Okay, let me tell you, these days, of course, we now see, doesn't matter even if it's a tragedy, in most of the cases, I'm not saying, I cannot generalize, which we should not do, that they end on a happy note, happily married ever after, but you don't show after that. Just kidding, just kidding. But you got the point. Even if it's a bad story, sad story, Eminem आ गया, so that's bad. Okay, no, no, no. What I'm saying is कि comic play है, ठीक है, इतनी सारी issues हैं, क्योंकि वो मरने वाला था, उसको मारे जाने वाला था चारुदत्त को, ठीक है, he was about to be killed, and this brother-in-law wanted to seduce her, wanted to molest her, and then also, in a way, kind of killed her, almost killed her. So, but बच गई, thank God. So ये सब है, but ending जो है वो happy है, which is great. Instead, a serious anomaly of social behavior connected to a ruling clique in the town is being shown graphically. Basically, I told you about this. Basically, it's talking about the brother-in-law who is taking law in his own hands. Just because he's brother-in-law doesn't mean he will take law into his own hands. Own nahi holna chahiye, own hands. So you got the point, right? Just because he's connected to the king, he cannot take law in his own hands. Okay, so that anomaly has been shown. It's not just that, okay, titillation ho jayega, comedy hai, thoda maza aayega and all that. No, man, think deep. Yeah, oh, hell yeah. There is no anarchy in the play. Okay, that's a very good point, right? Even as recklessness may be spotted in a part of the social fabric, most of the people in the town and outside seek guidance from the principles of virtue and social harmony. Okay, it's not that if some people are breaking law, doesn't mean that everyone is breaking law, and it also doesn't mean that there is no social administration, there is no kind of civilized society. There is, yes, some people, some क्या बोलते हैं वो, अरे अभी वर्ड आया था दिमाग में, मतलब जो होते हैं ना ऑड वन आउट्स वाले, तो देर आर, अगेन मेरे दिमाग में अभी मुंह पर ही है, बोलते हैं ना ऑन. वाओ ग्रेट, व्हाट इज हैपनिंग. Okay, there is no anarchy in the play, even as recklessness may be spotted in a part of the social fabric. There is, I told you in the beginning of the play itself. But जो most of the people in the town, basically वो चाहते हैं अच्छी चीजें करना. Okay, जो हमारा जो चोर है, चरणदास चोर नहीं, दूसरा चोर है, जो कि वसंत सिन्हा की जो असिस्टेंट है, उनके प्यार में पड़ा हुआ है, ठीक है. तेरे प्यार में क्या क्या ना बना मीना, कभी बना मजनू, कभी बना पता नहीं क्या. तो हार्मनी दिखाएंगे, सोशल हार्मनी है. हम प्लीज में डिटेल में डील करेंगे, डोंट वरी. अभी इसके ऊपर और 2 एक्स्ट्रा क्लासेस भी हैं, सो बहुत अच्छे से जाएंगे हम लोग. अभी बिगनिंग है, तो हो सकता है कि यू माइट फाइंडिंग अ लिटिल बिट बोरिंग. डोंट वरी, इट्स जस्ट द बिगनिंग. वंस वी आर इनटू द प्ले, you will enjoy it.
I hope so. I enjoyed it. Yeah. The place captured in Mrich Katika resembles the towns that still exist in modern India. Social mobility is also visible in the play. Oh hell yeah! देखो जो place captured किया गया है, it's basically it's showing a kind of society where trade is flourishing, people are there, also evil elements are there, or bad elements are there, and it's very much a reflection of the contemporary society. It can be compared with the towns and cities that still exist in today's world, in today's modern India, right? Not world, modern India. India की बात कर रहे हैं. And social mobility, जहाँ तक concerned है, is also visible in the play. I talked about caste system, right? And you know that in caste system, there is no mobility, right? You cannot jump into the other caste, at least not during that society and not during that time. Okay, so तो आप बोलोगे सर क्या भी कर सकते हैं, अगेन दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट बिकॉज वो फिर अपने आप में बड़ा लेक्चर हो जाएगा, तो हम उस पर नहीं जा रहे हैं, अभी की बात हम नहीं कर रहे हैं, हमें प्लीज वो फिर अब मैं कर सकता हूँ बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड वी विल बी डाइवर्टिंग अ लॉट, ओके, विच आई डोंट वांट टू डू राइट नाउ. सो अगर उसके बारे में अभी कुछ नेक्स्ट कुछ कोई डिफरेंट टेक्स्ट में आया, वी विल टॉक अबाउट दैट, फिलहाल नहीं. ओके, तो सोशल मोबिलिटी की जहां तक बात करते हैं, तो ये क्यों है कान में, छोड़ो इसे. हाँ हाँ, तो सोशल मोबिलिटी जो है, social mobility basically means if a person who is at the lower rung of the society, lower rung, रंग नहीं, रंग से रंग लगा के मुहे अंग से अंग लगा के रंग लगा दे, वो वाला रंग नहीं, ठीक है, ये रंग, अच्छा ये भी ये रंग हो गया पीला, ओके, पीला ढीला नहीं, सुनो मेरी बात, पप्पू पटेला. तो मोबिलिटी मतलब छोटे पद पे हो अगर आप और मेहनत करो, जो कि करना चाहिए सबको, तो आप बड़े रंग, बड़े लैडर मतलब बड़े स्टेप पे पहुंच सकते हो सोसाइटी में, समाज में, रंग वंग को मारो गोली, ऊपर पहुंच सकते हो, ऊपर नहीं सब गलत हो रहा है, ऊपर राइज हो सकते हो समाज में, ओके, स्टेटस में राइज हो सकते हो, ओके. सो दैट इज पॉसिबल इन द एस्पेक्ट ऑफ क्लास. यहाँ पे आ जाएगा क्लास एंड कास्ट का कंफ्लिक्ट. तो अभी हम आते हैं ब्राह्मण वाले पे. जो चारुदत्त है, he is a Brahmin, and because of all this philanthropic and altruistic activities that he did, he became a poor person. Okay, and so mobility की बात करें, in the caste mobility, he is still at the top rung, at the top of that hierarchy, of that system, caste system. ठीक है, ऊपर है. जहां तक क्लास की बात थी, क्लास भी इनका ऊपर था. He was a rich man, but ये क्लास जो है, ये आ गया नीचे, because he donated money and everything, I told you, तो नीचे आ गया, he became poor. Social mobility हुई इनकी लेकिन बेचारे की बुरी हुई तो ये अच्छी बात नहीं है, इनका बुरा हुआ. ठीक है, अब आते हैं जो हमारा शैम्पू है, सर जो तेरा चक्कर आए तो दिल डूबा जाए. ठीक है, तो दिल डूब गया मेरा, डूबा, दिल डूबा, तेरी आंखों में ये दिल डूबा. तो इतना डूब गया कि भैया ये जो शैम्पूअर था वो गैम्बलर था. ठीक है, यानी कि वो कास्ट में भी छोटा था, लेकिन ये जो है वो फिर बुद्ध मॉन्क बना, बुद्धिस्ट मॉन्क. तो एक तरह से आप कह सकते हो कि ऊपर राइज किया. अगेन इट्स अ वेरी मतलब वी कैन हैव डिबेट्स ओवर दिस थिंग. आई नो ये बोलोगे बहुत सारे लोग, अरे 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 क्या 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 बोले, रिलैक्स, इट्स डिबेटेबल टॉपिक. कुछ लोग अग्री करेंगे, कुछ लोग डिसएग्री करेंगे, कुछ लोग कुछ बोलेंगे, बट देयर इज अ मोबिलिटी, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो आप बोलोगे कैसे? इन सिंपल वर्ड्स आई विल एक्सप्लेन यू हाउ. जो शैम्पूअर है, अगर वो बुद्धिस्ट मॉन्क बनता है, तो पहले उसकी रिस्पेक्ट उतनी नहीं थी सोसाइटी में. नाउ ही बीइंग अ बुद्धिस्ट मॉन्क, ऑफ कोर्स उसकी रिस्पेक्ट जो है इससे तो कहीं गुना ज्यादा है. अगर आप बोलोगे कि ही वाज नॉट अ रियल बुद्धिस्ट मॉन्क द वे बुद्धा इमेजिन्ड हिज बुद्धिस्ट मॉन्क्स टू बी, which you are right, because he was not exactly the way Buddhist monk should be, but he's funny, he's funny, very funny character. So, but he's being respected, right? Way more than पहले से, before. अब आते हैं Buddhist monk पे. There is also one aspect that has been shown in this play,
that there was some fun thing going on, that Baja Barat, band Baja Barat. Okay, some fun thing going on basically. Okay, so he was like, okay, now I will go and I will go. But then he remembers, oh no, I'm a Buddhist monk, I cannot go. See, this is that now he has to act according to the persona that he is taking, or the role that he has taken upon himself to play. Okay, and that is of a Buddhist monk. So up now he cannot be like, acha jata hu main. Nahi. And he's from Patliputra at that time. It has been mentioned in the play. Patliputra, of course, is modern day Patna. So he is from that, and he also pronounces this word "sa" ko "sha" या फिर "cha." Basically, मतलब वो different way में pronounce करता है. So it sounds funny when you read it the way he is pronouncing it. The play, if you read that in that way. So थोड़ा सा डिफरेंट है, बट इट्स ऑल राइट. एंड मूवी में अगर आप देखोगे, ये जो मूवी है ना, यहाँ दिख रहा है ये वाला, ठीक है. सो उसमें भी वो थोड़ा फनी है, काफी ठीक है. खैर, इन इंडियन पोएटिक्स ऑफ द एंशिएंट पीरियड देयर यूज्ड टू बी रूल्स गवर्निंग लिटरेरी फॉर्म्स. अब आते हैं थोड़ा सा लिटरेचर पे. मतलब कब से कहाँ थे सर आप तो? अरे भैया लिटरेचर पर ही थे, मतलब लिटरेरी फॉर्म्स की बात कर रहे हैं, थोड़ा लिटरेरी थिंग्स. ओके, एमएच अब्राहम्स घुस गए आप. One interesting rule was that of emotion, Natya Shastra, such as love, disgust, anger, laughter, etc. Okay, जो Indian poetics था, there was some rules, norms that one needs to adhere to while writing or composing a play. Also, they used to be written in poetic form. Okay, so there were rules. जैसे कि एरिस्टोटल वाला है, बट हम उस पर नहीं जा रहे, उसका अलग है. ठीक है, यहाँ पे हमारा इंडिया की बात कर रहे हैं. सो दे यूज्ड टू गवर्न कि कैसे लिखा जाना चाहिए. तो क्या होना चाहिए था? एक काफी इंटरेस्टिंग रूल था, वो था इमोशन का, भाव का. ओके, भाव कैसे? प्रेम रस, डिस्गस्ट, घृणा रस, ऐसा ही कुछ नाम है. एंगर, गुस्सा वाला रस था. क्रोध रस, नहीं, कुछ और नाम है. एनीवे, मैंने पढ़ा है, मुझे वो एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं आ रहे. लाफ्टर रस, हास्य रस, ठीक है. श्रृंगार रस, ऑफ कोर्स ब्यूटी वाला, एंड ऑल दोस इमोशंस. विभद्र रस, भय रस, ठीक है, मतलब फियर वाला रस. एग्जैक्टली टर्म्स मुझे हिंदी वाले याद नहीं आ रहे, बट फिलहाल ध्यान नहीं आ रहे बेसिकली. एनीवे, तो ये नाट्य शास्त्र में जो है भाव, किस तरह से भाव मुद्रित किए जाते हैं, भाव से आप सुशोभित होके भाव को प्रदर्शित करते हैं. ठीक है, सो वो भाव हो गए. भाव का अभाव नहीं होना चाहिए. ओके, भाव नहीं गाना चाहिए. द गाइडिंग प्रिंसिपल इन मृच्छकटिका इज द कॉमिक अप्रोच. जो मृच्छकटिका है उसमें जो मेन जो जिस अप्रोच से लिखा गया है इस प्ले को, वो कॉमिक है, कॉमेडी है. ओके, in the beginning it's not very comic per se when that scene has been shown, और जो पीछा करना चेजिंग सीन है, but generally it is very comic. बहुत सारे मजाक हैं. जो वसंत सेना जो है, when she is thinking of चारुदत्त, then her friend, जो कि लड़कियां आपस में करती हैं, a typical thing दिखाया गया है, it's not anything. तो वो, अच्छा उनको प्यार करती हो, अच्छा. So it holds the main function of art to be entertaining. That art should be entertaining. It should not be boring. Again, if it's a serious play, that's a different thing. But यहाँ the main function of art to be entertaining. It holds the main function. यानी कि according to the literary tradition of the Indian poetic of the ancient period, the main function of art was that it should be entertaining. आगे देखते हैं. And letting people know that society, howsoever difficult and complex, is manageable. Okay, as I told you in the very beginning of the lecture, अगर आपने पहले ज्वाइन किया हो और ध्यान से सुना हो, तो I told you in the very beginning कि this play might seem complex, this play might seem complicated, but I gave you उस वक्त एक मंत्रा, मार्केट मंत्रा, what the hell. ओके, अरे ये एडवर्टीजमेंट आता था, मैं इतना तंग हो चुका था ना रेडियो पे. पहले मैं, मतलब पहले रेडियो सुनता था किसी जमाने में हम भी, तो 106.4 और भी कुछ थे, तो मैं पुराने गाने वाला सुनता था. FM गोल्ड. आजकल मुझे पता भी नहीं क्या आप बोलते हैं. तो उस वक्त आता था मंत्रे
यही 1 मिनट तक चलता रहता था। तो बोलता अरे आगे बोलो मार्केट मंत्र है। अप्रॉक्स 30 है। तो उन सबको रिलेट करो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन दो मेन हीरो हीरोइन से, ठीक है, प्रोटैगनिस्ट से, दोनों प्रोटैगनिस्ट हैं, चारुदत्त ऑफ कोर्स इज द मेन वन। तो उसी के रिवॉल्व, क्योंकि उससे प्यार करती है वसंत सिन्हा एंड ऑल दैट। तो अगर रिलेट कर पाए, ठीक है, कहीं ना कहीं, तो आपको ये समझने में आसानी होगी। एक मिनट। किसी भी कॉम्प्लेक्स प्ले को, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमेशा, बट अगर कोशिश करो तो समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और सोसाइटी मैनेजेबल है, यही बताया जा रहा है। द इशू इन मृच्छकटिका इज अ क्राइसिस दैट shows itself in the situation of the protagonist. Okay, he is rendered poor by circumstances. जो मृच्छकटिका में मेन इशू है, मेन मुद्दा है, मुद्दे की बात, जो क्राइसिस है, जिस तरह की सिचुएशन आई है, जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, वो आपको दिखती है प्रोटैगनिस्ट के जीवन में, और वो पुअर बना है अपने ही सर्कमस्टांसेस की वजह से। द नेम गिवन टू मृच्छकटिका इज प्रकरणा। अब आते हैं जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना आपको, इफ यू रिमेंबर इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर टुडे, ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू कि ये फिक्शन है, ये कहीं से लिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो मैंने बोला था सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे, अब डॉट कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। अब सुनते रहो ध्यान से, जो शुरू से अंत तक बने हुए हैं उनको क्लियर हो जाएगा, तो नहीं भी बने हुए क्लियर तो कर ही दूंगा मैं, चिंता मत करो। द प्राइमरी कंडीशन ऑफ प्रकरणा अकॉर्डिंग टू विश्वनाथ बैनर्जी, स्कॉलर है, is that it should be a drama of invention. That is, the plot should be an invention of the poet. कवि कल्पित, कवि कल्पिता लिखा है बट कवि कल्पित, based on worldly life, focusing on the actions of men and women. जो प्रकरणा है उसका प्राइमरी कंडीशन ये है कि कैसे वो एलिजिबिलिटी कंडीशन जो होती है ना, तो प्रकरणा आप किसे कहोगे, तो सुन लो। विश्वनाथ बनर्जी जी ने जैसा डिफाइन किया है, वो कहते हैं कि ये इन्वेंशन है, ये ड्रामा जो है इट्स अ ड्रामा ऑफ इन्वेंशन। तो आप बोलोगे क्या, समझा रहा हूँ। द प्लॉट शुड बी एन इन्वेंशन ऑफ द पोएट। जो पूरा प्ले है ये फिक्शनल है, ये जो कवि है, आई एम सॉरी, जो कवि है, जो पोएट है, उसने इमेजिनेशन से उसने इमेजिनेशन से इसको प्रेजेंट किया है। और माइथोलॉजी है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, हम उसकी बात नहीं कर रहे, बट जो कहानी की जहां तक बात है, अभियान शाकुंतलम, क्या वो कालिदास ने खुद लिखा था कहानी कि हाँ, मतलब उसका कभी कोई मेंशन नहीं था, नहीं, उन्होंने महाभारत से लिया है वो कहानी अपना, ऑफ कोर्स उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, उसको काफी इलेबोरेट वे में बताया है, ऑल दैट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ऑफ कोर्स उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं, बट वाज दैट स्टोरी हिज क्रिएशन? अगेन, स्टोरी को जिस तरह से लिखा, इलेबोरेट किया, सब कुछ वो उनका है, डेफिनेटली, नो डाउट। ही वाज अ ग्रेट पोएट, ही इज अ ग्रेट पोएट, ही विल ऑलवेज रिमेन। बट हम प्रकरणा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज थोड़ा इमोशंस को कंट्रोल करके समझने की कोशिश करो, नैरो डाउन, नैरो डाउन, ओके। मेरे चार दोस्त हैं, चार दोस्त हैं, कहाँ है? तो ये मेरी फ्रेंड की नाटक। तो खैर, प्रकरणा, तो जो प्रकरणा है, विश्वनाथ बनर्जी ने बोला है कि पोएट जो है, आपने कोई नॉवेल लिखा तो आपका फिक्शन है, अगर वो बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट जो फिक्शनल है वो प्रकरणा है, ओके। आते हैं आगे। इन दिस रिस्पेक्ट शूद्रका's ड्रामा fulfills the condition of dramaturgy quite well and even goes beyond it to be considered as the only drama of invention. Okay, ये थोड़ा सा आपको समझना होगा। देखिए, शूद्र का जो है
ये जो ड्रामाटर्जी या फिर ड्रामा जो है उसकी सारी कंडीशंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करता है कि आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए, जैसे जॉब वगैरह में होता है ना। अभी तो पार्टी शुरू होगी है, बट 3 साल बाद आपकी पार्टी काफी जोरों से चलेगी, ठीक है, वरना तो क्वाइट वेल एंड इवन गोज बियॉन्ड इट टू बी कंसीडर्ड एज द ओनली ड्रामा ऑफ इन्वेंशन। बल्कि ये इतना अच्छा लिखा गया है कि लग रहा है कि यही एक ड्रामा है इन्वेंशन का उस वक्त। ओके, अभी की बात नहीं, अभी तो भरे हुए हैं। As are the requirements of the type of composition, the main theme has been presented in 10 acts. 10 acts है। The predominant sentiment, जो रस है, जो भाव है, is love और श्रृंगार। As I told you, is mostly जितने भी आपके कॉमिक इन द सेंस की, कॉमिक का मतलब देखो, कॉमिक का मतलब वो नहीं होता जिसमें कॉमेडी हो। कॉमेडी is and can be a part of that comic, ठीक है, प्ले वर्क, बट अल्टीमेटली मतलब ये होता है कि हैप्पी एंडिंग हो। मतलब जरूरी नहीं कि पूरे प्ले के दौरान आपको एक बार भी हंसी हो सकता है ना आए, जरूरी नहीं कि आपको हंसी आए, हंसी ना भी आए तो आप बोलोगे ये कॉमिक कैसे हो। हैप्पी एंडिंग हो, ठीक है, अगर कोई मर भी गया हो तो लास्ट में हैप्पी एंड, फिर वो ट्रेजिक कॉमेडी हो जाएगा। तो मतलब हम उस पर नहीं जा रहे, बट यू गॉट द पॉइंट, लास्ट में हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, हैप्पीली एवर आफ्टर वाला, ठीक है। एवर आफ्टर के बारे में दूसरा प्ले लिखोगे सीक्वल, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, फिर वो पता चलेगा वो नहीं था बट श्रृंगार और डीप एंड काम, धीर प्रशांत, धीर प्रशांत शांत। ब्राह्मण इज द हीरो। चारुदत्त एकदम सुलझा हुआ आदमी है, बहुत ही शांत आदमी है। सुलझा मतलब कि थोड़ा ज्यादा ही अल्ट्रुइस्टिक है, कि इतना ही हो गया कि वो खुद ही भिखारी बन गया, मतलब पुअर हो गया, बट ही इज वेरी वेरी calm mind. Of the two heroines, one is Dhutta, is born of a noble family, Kulaja, and the other Vasant Sena is a public woman or Ganika. ठीक है, and this makes the composition a mixed or some kern type of prakarna. यहाँ पे आपको नोबल फैमिली भी दिखाया गया है और एक पब्लिक वुमेन, जो कि आप कह सकते हो गणिक बोल सकते हो या फिर यू नो कोर्टिजान, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का संगम दिखाया गया, अमलगमेशन दिखाया गया है। ओके, सो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो अभी हम देख रहे हैं भैया, मजा आ गया जिंदगी का, तो जिंदगी के मजे करने चाहिए। क्वेश्चन आंसर्स जो कि है मेरे ख्याल से, तभी तो आपने क्वेश्चन किया है, तो आप एसओएल ऑफिस ज्वाइन मतलब कांटेक्ट करिए, ठीक है, वहाँ पे सर लोग आपको बता देंगे। एनोनिमस जी कह रहे हैं कि प्लीज ऐड मी ऑन टीम्स, अगेन एसओएल ऑफिस ज्वाइन करिए, मतलब कांटेक्ट करिए। प्रियंका जी ओके, क्या मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एनोनिमस, पूजा जी, वंशिका, मनन जी सिंह, okay मनन जी, I will take care of that. सौम्या, गुड मॉर्निंग सौम्या। वाओ, अब देखो मेरे सामने 2 कमेंट्स हैं। ओके, मनन जी सेइंग प्लीज लेक्चर इन इंग्लिश सर, वेरी गुड, व्हिच आई डिड। संदीप जी सेइंग सर थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी समझा दो प्लीज। एक बात बताओ तुम, मैंने दोनों लैंग्वेज का यूज किया है, क्या करते हो तुम। गुड मॉर्निंग सर, कैन यू प्लीज टेल which book to buy? अरे दिखाया तो किताब, Geishas from Japan. That's a very good point, Kevin Ebrasi. Very good point. Very good point. Very good comparison, I would say. Not exactly, but to some extent, yes. Because the difference, not exactly why I said, because of the cultural differences. Of course, you know that, right? But yes, good comparison. I'm Kevin Ebersi. I'm very happy to know that. पीडीएफ नहीं है, अच्छा, इंग्लिश ग्रुप में ज्वाइन कर लो। सादम परवीन जी, कोई मेरे को प्लीज टेलीग्राम का लिंक भेज दो ताकि मैं यहाँ पे पब्लिश कर दूं, ताकि जो बच्चे नहीं हैं वो ज्वाइन कर लें, ठीक है। कैन यू शो द बुक वंस? मैंने किताब दिखाया था, फिर से दिखा देता हूँ मैं, मैंने वो पूरा उस पे भी है, कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखो किताब, अच्छा इसमें तो दिख रहा है, अच्छा देखो दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, ओके दिख रहा होगा, ठीक है, यही किताब है विच यू हैव टू बाय, ओके, अमेजोन से इजीली मिल जाएगी, 1-2 दिन में आ जाएगी, ठीक है। क्या लिखा है, हाउ कैन गेट द प्रेजेंटेशन, सो देखें रिकॉर्डेड क्लासेस कैसे देखना है, एसओएल ऑफिस में कांटेक्ट करिए, मेरे ख्याल से वहाँ पे रहता है,
But again,